محترم ناظرین السلام علیکم۔ روشن ٹی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں اور جس حالت میں ہو، خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، آرام میں ہو یا تکلیف میں، اللہ سے ڈرتے رہو اور تقوی تمہارا شعار رہے، اور ہر برائی کے بعد نیکی کرو، وہ اس کو مٹا دے گی، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ سالورا منڈل کے رہنے والے مرحوم آرمی جوان گنگا پرساد کے آخری رسومات میں ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو و سی پی ستیہ نارائنا نے کی شرکت۔ بانسواڑہ حلقہ اسمبلی کی ہر تانڈے میں جگدمبا سیوالال مہاراج مندر کے قیام کے لیے فنڈز منظور۔ بانسواڑہ میں بنجارا بھون کے افتتاحی تقریب سے ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچھرام سرینواس ریڈی کا خطاب۔ رنڈی پیٹ منڈل کے مختلف گاؤں میں چیک ڈیم پروجیکٹ کے ذریعے سے ہی کاشت کے لیے پانی کی فراہمی کی جا رہی۔ آرمور ایم ایل اے جیون ریڈی انہوں نے مرن پلی میں چیک ڈیم کے لیے رکھا سنگ بنیاد۔ سی ایم کے سی آر کے دور میں ہر طبقے کے ساتھ کیا جا رہا انصاف۔ جکران پلی منڈل کے مختلف طبقے کے ذمہ داروں میں سنگم کے لیے منظور فنڈز کے چیکس کی رورل رکن اسمبلی باجیٹی گوردھن نے کی تقسیم۔ امان ویلفیئر سوسائٹی کا سابقہ ڈپٹی میئر و بی آر ایس قائد میر مجاز علی کارپوریٹر ہارون خان کے ہاتھوں افتتاح۔ نوجوانوں کی خدمات کی ستائش۔ اندور کینسر ہاسپٹل و کینسر فاؤنڈیشن کے اشتراک سے شعور بیداری ریالی کا انعقاد۔ اے سی پی کرن کمار و ضلع سرکاری ہاسپٹل سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر پرتیما راج نے کیا افتتاح۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ دہلی اسکریننگ کمیٹی اجلاس میں کانگریس حرکیاتی قائد و سابقہ وقف بورڈ صدر جاوید اکرم کی شرکت و رواں سال انتخابات میں مسلم نمائندگی میں اضافہ کرنے کا کیا مطالبہ۔ آج یہاں پر یہ جو اسکریننگ کمیٹی کی جو میٹنگ یہاں رکھی گئی ہے نیو دلی میں، تلنگانہ کے تمام ہمارے صدر علی جناب ریونت ریڈی جی، مدھو گوڈیاشکی جی بھٹی صاحب، اور ہمارے مائنارٹیز کے بابا صدیقی صاحب، اور ہمارے پورے طارق انور صاحب، اور تمام مائنارٹی کے لیڈر ہمارے ناصر حسین صاحب، تمام یہاں اندر وارو میں ہیں۔ ہم یہ یہاں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ تلنگانہ میں، کرناٹک میں جس پور ساتھ دیا ہے کانگریس پارٹی کا، اور سونیا گاندھی جی کے اور کھڑگے صاحب کے، راہل جی کے اور پرینکا جی کے جو ہاتھوں کو مضبوط کیے ہیں کرناٹک میں، اس طریقے سے یہاں تلنگانہ میں بھی ہم کانگریس پارٹی کو مضبوط کریں گے۔ ہمارا ڈیمانڈ ہے زیادہ سے زیادہ، حیدرآباد اولڈ سٹی کے بعد اگر مائنارٹیز جہاں زیادہ ہے، 40% کے اوپر مائنارٹیز ہے، مسلم مائنارٹیز کو بھی ٹکٹ دینے کے لیے ہم نے ریونت ریڈی جی کو اور اسکریننگ کمیٹی کے تمام ممبروں کو ہم نے ڈیمانڈ کیا، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ جہاں پر بھی مائنارٹیز 40% کے اوپر ہے، وہاں پر ہم مائنارٹیز کو ضرور ٹکٹ دیں گے۔ جس طریقے سے آج ہم نے اظہر الدین صاحب کو اور محمد علی شبیر صاحب کو اور فیروز خان صاحب کو یہ ٹکٹ اعلان ہوا، یہ معلوم ہے، لیکن ہم لوگ اور اضلاع میں بھی، جیسا میں نظام آباد سے آتا ہوں، نظام آباد ڈسٹرکٹ میں بھی اگر ایک ٹکٹ مسلمان کو دیا جاتا ہے، اور کریم نگر، ورنگل، کھمم میں بھی اگر مسلمان کو دیا جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی کے تمام تلنگانہ میں حکومت آئے گی اور مسلمان کانگریس پارٹی کا ساتھ دیں گے۔ آلور کے رہنے والے محمد سفیان اقبال کو گوا میں منعقد ہوئے شہید بھگت سنگھ نیشنل اسپورٹس میٹ 2023 میں گولڈ میڈل حاصل۔
شہر آرمور کے رہنے والے محمد سفیان اقبال جو شہر نظام آباد کے کیٹ ڈگری کالج میں زیر تعلیم رواں سال گوا میں منعقد ہوئے شہید بھگت سنگھ نیشنل اسپورٹس میٹ 2023 میں منعقد ہونے والے ریسلنگ مقابلے میں حصہ لیتے ہوئے گولڈ میڈل حاصل کرتے ہوئے اپنے شہر کا نام روشن کیا۔ ان کی اس کامیابی پر ان کے والد شرف الدین اقبال و والدہ سمینہ اقبال نے خوشی و مسرت کا اظہار کیا اور ان کی اس کامیابی کے ساتھ وہ رواں سال ہونے والے بین الاقوامی مقابلوں کے لیے بھی منتخب کیے گئے۔ امان ویلفیئر سوسائٹی دفتر کا شاندار پیمانے پر افتتاح۔ تقریب میں سابقہ ڈپٹی میئر و BRS میر مجاز علی و کارپوریٹر ہارون خان نے کی شرکت و ذمہ داران تنظیم کے جذبے کی ستائش۔ آج شہر نظام آباد کے ڈرائیور کالونی میں نوجوان و علاقے کے معزز افراد کی جانب سے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے امان ویلفیئر سوسائٹی کی تشکیل دی گئی، جس کی صدارت شیخ احمد الدین کر رہے ہیں، جو شہر نظام آباد کے مشہور معروف سماجی قائد اور گزشتہ کئی سالوں سے شہر کے غریب عوام کی مدد کرتے آ رہے۔ اور آج اس تنظیم کے دفتر کی افتتاحی تقریب میں شہر نظام آباد کے سینئر سیاستدان سابقہ ڈپٹی میئر و قائد BRS میر مجاز علی و حرکیاتی کارپوریٹر ہارون خان نے شرکت کی۔ اس موقع پر تمام مہمانوں کا تنظیم کے ذمہ داروں نے شاندار پیمانے پر استقبال کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے تمام منتظمین و ذمہ داروں کو مختلف نصیحتیں کی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دینے کی نصیحت کی اور تمام تنظیم کے ذمہ داروں کے جذبے کی ستائش کرتے ہوئے ان کو تہنیت پیش کی۔ اس تقریب میں BRS قائد متین جوبلی، میر امتیاز علی، محمد مبین، امو بلالہ و دیگر موجود تھے۔ تمام سوسائٹی کے ارکان کو، جناب صدر صاحب کو اور اس محلے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ محلے میں ایسے بھی نوجوان موجود ہے جو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر محلے کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے اپنے آپ کو آگے کر رہے ہیں۔ سوسائٹی قائم کرنے کا مقصد تمام ہر وہ زمرے میں، ہر وہ معاملے میں، جیسے معاشیت کا معاملہ ہے، ایجوکیشن کا معاملہ ہے، ہر وہ چیز کے لیے آپ کو جو ہے سو اس گلی کی عوام کا تعاون کرنا ہے۔ وہ کس طرح سے کرنا ہے انشاءاللہ میں تفصیل جو ہے سو اس کے سوسائٹی کے ارکان سے رجوع ہو کر ہر وہ معاملے میں ان کی مدد کروں گا، ان کی رہنمائی کروں گا اور ہر چیز سے واقف کرواؤں گا، اس لیے کہ لوگ جذبہ لے کر، ایک نیک اور اچھا جذبہ لے کر یہ لوگ آگے بڑھے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو ہر وہ طریقے سے ان کی نمائندگی کرے اور ان کی رہبری کرے، ان کو صحیح جو ہے سو ایک اچھا جو ہے سو رہبر بنائے، تاکہ جو ہے سو اس کا محلے کو فائدہ حاصل ہو۔ اور میں جناب بابا بھائی صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی بنا کر آپ اس کا غیر غلط فائدہ اٹھائیں گے تو ہم اس کے اندر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، نہ کسی کی سوسائٹی کے ارکان کا ساتھ دیں گے۔ جو لوگ حق پہ رہیں گے، سوسائٹی کے ارکان جو سیدھا کام کریں گے، جو حق پہ کام کریں گے، جو عوام کی بھلائی کریں گے، برابر ان کے ہر قدم کے ساتھ ہمارا قدم رہیں گا۔ اور میں ان کو نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلا معاملہ ہے، وقفیت نہیں ہے، اس لیے میں تمام سوسائٹی کے ارکان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی لوگ غصے میں آ کر اہل فیل بھی بکتے، جب آپ یہ کام کے لیے نکلے، ایک اچھے کام کے لیے نکلے تو برائیاں اور بدنامیاں بھی آپ کے اوپر آتے، الزامات بھی آتے۔ یہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، تمام چیزوں کو درگزر کرتے ہوئے آپ اپنے خدمت۔ تلنگانہ کانگریس کی 15 اکتوبر سے بس یاترا، راہل گاندھی 3 دن حصہ لیں گے۔ تلنگانہ میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس پارٹی کی جانب سے 15 اکتوبر سے بس یاترا شروع کی جانے والی ہے۔ اس بس یاترا میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی 3 دن تک حصہ لیں گے۔ کانگریس ذرائع کے مطابق راہل گاندھی شمالی تلنگانہ میں سفر میں شرکت کریں گے۔ راہل گاندھی اس مہینے کی 19، 20 اور 21 تاریخ کو 3 دن بس یاترا میں حصہ لیں گے۔ 2-3 روز میں الیکشن شیڈول آنے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ راہل گاندھی بس یاترا کے ذریعے تلنگانہ میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ اس کے علاوہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی کو بھی بس یاترا میں حصہ لینے کی کوشش کریں گے۔ بس یاترا کے ذریعے ریاست بھر کے تمام اضلاع کا احاطہ کرنے کے لیے تلنگانہ کانگریس روٹ میپ تیار کر رہی ہے۔ بس یاترا کے دوران کئی مقامات پر کارنر میٹنگز منعقد کی جائے گی۔ کوریٹلا میں جماعت اسلامی کی جانب سے میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے جلسے کا کیا گیا اہتمام۔ کوریٹلا کے کنگ گارڈن فنکشن ہال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مہینے کے موقع پر جماعت اسلامی کی جانب سے ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ اس میں مقامی MLA
کے ودیا ساگر راؤ نے شرکت کی اور کہا کہ تاریخ رابطہ کرنے پر اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں، اسی لیے ایسے پروگرام منعقد کرے اور ہر مذہب میں امن کو قائم کرنے کی ہدایت دیتے ہیں۔ ان کے بعد کوریٹلا کانگریس انچارج نرسنگ راؤ نے مخاطب ہو کر کہا کہ ہندوستان میں پہلے سے ہی گنگا جمنی تہذیب ہے، اسلام بڑا مذہب ہے، حاضری دے کر مندر میں جاتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں کوریٹلا کے BRS صدر انم انل اور کونسلر سجو انور، رفیع رحیم، کانگریس کے صدر گنگا دھر AA نعیم، نائب صدر محمد نعیم اور مقامی امیر الیاس احمد خان دیگر پارٹی کارکن نے شرکت کی۔ మైనారిటీస్ కూడా అలా చాలా మంది మక్కా వస్తే మనకు ఒక పుణ్యం వస్తుందన్న ఆలోచనతోటి వారు కూడా మక్కా వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉంది. మొహమ్మద్ వారి గురించి చెప్పాలంటే వారి జీవిత చరిత్ర గురించి మరి ఎంత చెప్పినా సరిపోదు. గతంలో ఇక్కడ ఉన్న ప్రవక్త వారు కూడా వారి గురించి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే మనం పుట్టినప్పుడు ఏం తీసుకొని రాలేదు, మనం వెళ్ళేటప్పుడు కూడా మనం ఏం తీసుకోపోము. మరి మనం బ్రతికినంత కాలం ప్రేమ, అనురాగం, సోదరి భావనతో మనం బతకాలి అన్నదే వారి సందేశం. సో ఆ సందేశాన్ని మనందరం కూడా समाज में मुस्बित तब्दीली लाना असातिज़ा की जिम्मेदारी। मौजूदा समाज में मुस्बित तब्दीली पैदा करना असातिज़ा की अहम जिम्मेदारी है। मौजूदा तालीमी निज़ाम में जदीद तक़ाज़ों से हम आहंग होकर तलबा को इक़्तिदार में तालीम देना और इन्हें समाज के लिए फ़ायदा मंद बनाने में असातिज़ा ही अहम रोल अदा कर सकते हैं। मौलिम का समाज में रुतबा और मुकाम बुलंद करने के लिए जदीद तरीक़ों और तर्ज़ तालीम से वाक़िफ़ियत लाज़मी और तदरीस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और महारत भी असातिज़ा को होना चाहिए, जिससे तलबा और समाज में असातिज़ा का विखार बुलंद होगा। ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन मुल्क गिर मुहिम तदरीसी आगाही इल्मी इर्तिक़ा बेहतर मुस्तक़बिल के उन्वान से 20 रोज़ा मुहिम मना रही है। सा मुहिम के तहत असातिज़ा, तलबा और औलिया तलबा के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम रखे जा रहे हैं। तमाम असातिज़ा से अपील की कि इस मुहिम में शामिल होकर इस मुहिम को कामयाबी से हमकिनार करें। इन ख्यालात का इज़हार आइटा आर्मर की जानिब से मुनक़िदा असातिज़ा के इजलास में जनाब सलाम साहब, साबिक़ सदर आइटा निज़ामाबाद ने किया। जनाब मोहम्मद इलियास अहमद साहब, सदर आइटा निज़ामाबाद में इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आइटा असातिज़ा की एक नज़रियाती तंजीम है जो असातिज़ा और तलबा में मुस्बित तब्दीली लाना चाहती है, तालीम, रहनुमाई और जायज़ हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। इस मुहिम के ज़रिए समाज में असातिज़ा में अपनी ज़िम्मेदारियों के तहत शऊर बेदार करना चाहती है। इस मुहिम के तहत निज़ामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जा रहे हैं, जिसमें प्रेस मीट, असातिज़ा के इजलास, असातिज़ा से इनफ़रादी मुलाक़ातें, गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ प्रोग्राम्स अंजाम दिए जाएंगे। जनाब शेख आरिफुद्दीन साहब, सेक्रेटरी आइटा निज़ामाबाद ने भी इजलास से खिताब किया और असातिज़ा पर जोर दिया कि वो अपनी तदरीसी महारतों में इजाफ़ा करें, तलबा के अखलाक पर तवज्जो दें और अपने मुकाम को दोबारा समाज में बुलंद करने के लिए जद्दोजहद और कोशिश करें। असलम बिन मोहसिन साहब ने इफ्तिताही कलिमात पेश की और आइटा का प्रोग्रामों के मक़ासिद पर रोशनी डाली और मुहिम के मुतालिक से अपने ख़यालात का इजहार किया और जमात का तारुफ पेश किया। जनाब हसनात अहमद खान साहब, सदर आइटा आर्मर यूनिट ने असातिज़ा और मेहमानों का इस्तकबाल किया। मुहिम के मुतालिक इसके मक़ासिद को असातिज़ा पर वाज़ेह किया। आइटा आर्मर के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ताउन करने की अपील की। इन्होंने असातिज़ा के पेशे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद करने और इनकी रहनुमाई करने के मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार किया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत के ज़रिए जनाब हाफिज़ अब्दुल वहीद साहब ने किया और दुआ के ज़रिए इस प्रोग्राम का अख्तिताम अमल में आया। खानगी और सरकारी स्कूलों के असातिज़ा ने शिरकत की और प्रोग्राम को कामयाब बनाया। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बालकुंडा में कई तरक्याती कामों को अंजाम देने का मुकामी अवामी नुमाइंदों ने किया इजहार। रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब बालकुंडा तरक्की की जानिब गामज़न होने का MPP लावण्य लिंगागौड, सरपंच बी सुनीता, मंडल पार्टी सदर बदम प्रवीण रेड्डी व MPDO संतोष कुमार ने इजहार किया। बालकुंडा मंडल के मुकाम पर मुक़ीम अवाम को बुनियादी सहूलियात की फ़राहमी अमल में लाने के लिए आज मंडल परिषद फंड से कई तरक्याती कामों से मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का आगाज़ अमल में लाए जाने का इजहार किया और बताया कि ज़िले परिषद गवर्नमेंट स्कूल के करीब वाक़ खाली अराज़ी पर अवाम की सहूलत के लिए 5 लाख रुपए की मसारफ से बैतुल खला की तामीर अमल में लाने के लिए इससे मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताम अमल में लाया गया और अम्बेडकर नगर कॉलोनी में वाक़
वाईकुंठा धामम के लिए 3 लाख रुपए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई है और इसी के अलावा मंडल परिषद तहसीलदार दफ्तर के पास 1.25 लाख रुपए मालियती रकम से हाई मास्टर लाइट का क़याम और पुचमा गली में वाक़ हनुमान मंदिर के पास 1.25 लाख रुपए मालियती रकम से हाई मास्टर लाइट का क़याम अमल में लाने के लिए भूमि पूजा अंजाम दी गई है। और इसी तरह विनायक नगर सफेद कुट्टा के करीब इलाके में सीसी रोड की तामीर के लिए 5 लाख रुपए की फंड्स की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ अराज़ी पर संग बुनियाद रखते हुए सीसी रोड तामीरी कामों का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद CM KCR की क़यादत वो रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब बालकुंडा की तरक्की के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करने का इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने मंडल से मुताल्लिक़ा मौज़ूआत की तरक्की के लिए रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस बालकुंडा से मुकामी अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। प्रोग्राम में MPTC मेम्बरान मामली दिव्या राकेश लिंगा पोशेट्टी अनुगुला रामराज गौड मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली नायब सरपंच शेख वहाब पार्टी मंडल जनरल सेक्रेटरी P विद्यासागर मौजे के सदर सागर यादव वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजालुद्दीन वार्ड मेम्बरान G राजेश P शिवा प्रसाद मौजे के मोतबर अफराद E पोशेट्टी कायदीन P लिम्बा रेड्डी A श्रीनिवास शेख आरिफ D रवि M नरसिया A सागर चिन्ना राजन्ना व दिगर ने शिरकत की। मामड़ीपल्ली देहात में जिले BRO सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की अवामी नुमाइंदों के हाथों मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाई गई। मामड़ीपल्ली देहात में आर्मूर रुकन असम्बली POC कमेटी चेयरमैन व जिले BRO सदर जीवन रेड्डी की काविशों के सबब तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा कल्याण लक्ष्मी चेकों की मुकामी सरपंच चिंता मल्ला रेड्डी व मौजे के TRS पार्टी सदर DC गंगाधर के हाथों इस्तिफादा कुनंदगान में फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर KCR हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद के तहत मुतारफ़ किए गए फलाही स्कीमात के समराज से तमाम तबक़े के अवाम को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है, जिसकी किसी दूसरी रियासत में नज़ीर नहीं मिलती। ज़िले BRO सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब मंडल से मुताल्लिक़ा देहात में तरक्याती कामों के लिए फिलफुल फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिससे कई तरक्याती कामों को तेज़ी के साथ मुकम्मल करते हुए अवाम को सहूलियात पहुँचाई जा रही हैं। इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के बाद CM KCR वज़ीर आला ओहदे पर फायज होने के फौरी बाद साबिक़ा हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में ना होने वाले कई तरक्याती कामों को तेज़ रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया गया है, जिससे रियासत को अलहदा शिनाख्त हासिल हुई है। वो मुल्क के किसानों को साबिक़ा हुकूमत के इक़्तिदार में काफ़ी परेशान हाल थे, ताहम TRS हुकूमत के इक़्तिदार पर आने के बाद रियासत हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा स्कीमात के बायस किसान खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव किसानों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं और किसानों की भलाई के लिए रियासत में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। और इसी तरह से रियासती हुकूमत ने गरीब अवाम के मसाइल के एक्सवी के लिए BRS के फलाही इक़दामात रोज़ रोशन की तरह आया है। आसरा स्कीम के तहत माजूरीन मामरीन बेवान तनहा ज़िंदगी गुजारने वाले ख़वातीन को माहाना पाबंदी के साथ इमदाद दी जा रही है। माजूरीन को हर माह 4016 रुपये जबकि दीगर इस्तिफादा कुनंदगान को माहाना 2016 रुपये वजीफ़ा दिया जा रहा है। आसरा स्कीम गरीबों के लिए फ़िलवक्ती बेहतरीन सहारा हासिल होने का इजहार किया। इस मौके पर इस्तिफादा कुनंदगान ने रियासती वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव व ज़िले अवाम के चहेते ख़ायर ज़िले BRO सदर आर्मूर MLA जीवन रेड्डी को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में मौजे के सरपंच चिंता मल्ला रेड्डी, मौजे के TRS सदर DC गंगाधर, सेक्रेटरी विश्वालक मोतीलाल, मौजे की BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। हासा कुतूर देहात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मुकामी BRS कायदीन के हाथों नौजवानों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस व हेलमेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। हासा कुतूर देहात में अवाम के चहेते कायद रियासती वज़ीर इमारत और शोरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों के सबब मुकामी BRS कायदीन के हाथों नौजवानों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस व हेलमेट की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से नौजवानों को मुफ्त ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा हर रोज़ सड़क पर पेश आने वाले हादसात से नौजवानों की कीमती जान को ज़ाय होने से बचाने के लिए हेलमेट की फ्राहमी अमल में लाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी सदर
कृति रैतु सामान्य समिति सदर नौमुला नरेंद्र नायब सरपंच ए राजेश्वर साबिका सरपंच बी गोपी साबिका एमपीटीसी राजना यू सदर के चिरंजीवी वो दीगर ने शिरकत की। जिले निर्मल कुंटाला मंडल के मुकाम पर अवामी नुमाइंदों के हाथों पुलिस मुलाजिमत हासिल करने वाले उम्मीदवारों की तहनीत अमल में लाई गई। जिले निर्मल कुंटाला मंडल के मुकाम पर मंडल के साबिका एमपीटीसी रमन्ना राव ने हाल ही में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इनेकात अमल में लाए गए पुलिस रिक्वायरमेंट में कामयाबी हासिल करने वाले उम्मीदवारों की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि नौजवान मर्द व ख़वातीन मुकाबला जाती इम्तिहान में सख्त मेहनत के जरिए कामयाबी हासिल करना काफ़ी खुशाइन बात होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में लिंगाराव, सोमा शंकर, गज्जाराम, कुमारी, गजेंद्र, रमेश, शिवा कुमार, रामानंद व दीगर ने शिरकत की। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुकाम पर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूर से नहलाते हुए मोहन राव पटेल ने किया इजहार तशक्कुर। जिले निर्मल लोकेश्वर मंडल के मुकाम पर धर्मोरा देहात का दौरा करने वाले रियासती बीजेपी एग्जीक्यूटिव मेंबर बी मोहन राव पटेल ने हाल ही में वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी के शहर के मुकाम पर मुनाकिदा जलसियाम में हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के ताल्लुक से ऐलान करने के बायस आज वजीर आजम मोदी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए इजहार तशक्कुर पेश किया। बातज़ा इन्होंने कहा कि हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाने के बायस किसानों को मुनासिब कीमत की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में इनके साथ बीजेपी पार्टी के कायदीन संजीवा रेड्डी, गंगाधर, एडवोकेट साईनाथ, पार्टी से वाबस्ता कायदीन, कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के ज़्यादातर देहातों में लिफ्ट इरीगेशन स्कीम के तहत 1 लाख एकड़ अराजी की काश्त के लिए पानी फराहम होने का ज़िले बियारा सदर आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने किया इजहार। नंदीपेट मंडल के मारमपल्ली में 77 लाख रुपए माली रकम पर मबनी लिफ्ट इरीगेशन स्कीम मारमपल्ली लिफ्ट इरीगेशन से मुताल्लिक़ अराजी पर संग बुनियाद रखने वाले प्रोग्राम में ज़िले बियारा सदर आर्मर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने शिरकत की। इससे कबल मुकामी अवाम वो बीआरएस कायदीन व कारकुनान की जानिब से आर्मर एमएलए जीवन रेड्डी का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़यादत में किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने के लिए कई मुनफरिद स्कीमात को रूब अमल में लाने का सहरा CM KCR के साथ जाता है और इसी तरह से आज नंदीपेट मंडल के कई किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के मकसद के तहत लिफ्ट इरीगेशन कामों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से 77 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाते हुए किसानों को हर तरह की मदद सिर्फ रियासत तेलंगाना में की जा रही और CM KCR की जानिब से दिए गए वादों को वक्तन फ़ौक्तन पूरा किए जाने का इजहार के इस प्रोग्राम में नंदीपेट मंडल के BRS कायदीन व कारकुनान, अवामी नुमाइंदे व मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। ज़िले में पुडू अराज़ियात से मुताल्लिक़ मसाइल के हल के लिए कोशिश करने का कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार। ज़िले के मुकाम पर वाक़ बाईपास सड़क के करीब तामीर करने वाले ज़िले गामरेड्डी बंजारा भवन की तामीर से मुताल्लिक़ अराज़ी पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इनके साथ पटवारी देवी, पीठाधिपति रामाराव महाराज के नवासे बाबू सिंह व उर्दू अकादमी चेयरमैन मुजीब, ज़िले रैतु बंधु समिति सदर D. रेड्डी, बंजारा कायदीन के अलावा मोहन नायक व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर इनेकात अमल में लाए गए जलसियाम से स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुख्तस किए गए 1 एकड़ अराजी पर तामीर करने वाले ज़िले सतह के बंजारा भवन जगदम्बा सेवालाल रामाराव महाराज की मनादे से मुताल्लिक़ अराजी पर संग बुनियाद रखने के पेश नज़र तमाम को मुबारकबाद पेश की। KCR हुकूमत के दौर इख्तिदार में बंजारा भवन व 3 मनादिर की तामीर के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से कौमी शाहरा के करीब कीमती एकड़ अराजी को मुख्तस करते हुए तामीर के लिए दरकार फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के लिए अनकरीब CM KCR से मुलाकात करते हुए इल्म में लाने का इजहार किया। शहर में इंदौर कैंसर हॉस्पिटल व ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कैंसर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। आलमी सतह पर जारी कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के पेश नज़र आज इंदौर कैंसर हॉस्पिटल व ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के इश्तराक से कैंसर बेदारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर अजय कुमार, अभिनव सरदार, लोहित कुमार, डॉक्टर प्रतिमा राज ने सालिया मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर M. किरण कुमार ने हरा झंडा लहराते हुए इफ्तिताह अमल में लाई जाने वाली रैली में इंदौर कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से हॉस्पिटल मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर प्रद्युम्न रेड्डी, डॉक्टर रविंद्र नाथ सूरी, मैनेजर मुनिंदर रेड्डी, हॉस्पिटल के मुलाजमिन ने शिरकत की। ద్వారా
కాన్షియస్నెస్ లో నవడేస్ క్యాన్సర్ అనేది వెరీ క్రానిక్ అయిపోయింది. అది కాన్స్టాంట్ గా చెకింగ్ చేసుకుంటే ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో కనుక ఉంటే మనం విన్ ఓవర్ ఈజీగా. सिक्किम की बारिश में लापता फौजी जवान की मैयत आबाई मुकाम मुंतकिल। कलेक्टर निजामाबाद राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि निजामाबाद में सिलवरा मंडल के कमनपल्ली गांव के 32 साल फौजी जवान गंगा प्रसाद की मैयत आज शाम इनके आबाई गांव पहुंच गई। इस सिलसिले में भारतीय फौज ने जिले इंतजामिया को आगाह कर दिया। सक्कम में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें तीस्ता नदी में शदीद बारिश की वजह से मंगल की रात आने वाले सैलाब में फौज का एक जवान गंगा प्रसाद हलाक हो गया। फौजी हकाम ने बताया कि कुदरती आफात की वजह से 23 नौजवान लापता है और इनकी तलाश के दौरान जुमेरात को गंगा प्रसाद की लाश मिली। कलेक्टर ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद फौजी जवान की लाश को एक खुसूसी परवाज के जरिए हैदराबाद लाया गया और वहां से फौजी जवान की लाश इनके आबाई मुकाम कमनपल्ली रवाना कर दी गई। इस मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु CP V सत्यनारायणा ने इनके जसद खाकी पर खिराज खिदमत पेश की। RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन को 1 करोड़ 45 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी प्रोसीडिंग रूल हवाले किया। TSRTC चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के अराकीन को 1 करोड़ 45 लाख रुपए मालियती रकम पर मबनी प्रोसीडिंग हवाले की। पहले मरहले के तौर पर जकरानपल्ली मंडल के मुनीपल्ली, लक्ष्मापुर, नारायणपेट देहात में मुख्तलिफ बिरादरी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले SC BC माइनॉरिटी व मुख्तलिफ तबके के संगमों के अराकीन को 1 करोड़ 45 लाख रुपए पर मबनी प्रोसीडिंग रोल और इससे मुताल्लिक़ा अराकीन को हवाले किया। इस मौके पर RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने खिताब करते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR की काविशों के सबब निज़ामाबाद रूरल हल्के के मुख्तलिफ तबके के SC ST BC माइनॉरिटी और मुख्तलिफ तबके से ताल्लुक़ रखने वाले संगमों के लिए 16 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने के तहत आज जकरानपल्ली मंडल के मुख्तलिफ देहातों में फ़राहमी अमल में लाने के ताल्लुक़ से ऐलान किया। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी के कायदीन, मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान, कारकुन, अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। नंदीपेट मंडल के मराकज़ में जंगली कुत्तों की तादाद में इजाफा होने के बायस बच्चों व पालतू जानवरों पर हमले के वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। नंदीपेट में आज सुबह के अवलिन सातों यानी ठीक 7 बजे 8 साला समरीन किराना दुकान को जाने के दौरान जंगली कुत्तों ने हमला करते हुए शदीद जख्मी कर दिया और इसके अलावा 4 दिन पहले दक्कन बैंक के सामने एक मासूम बच्ची पर आवारा कुत्तों की जानिब से हमला करने के वाक़या पेश आया और ऐसा ही मज़ीद एक और वाक़या रोनुमा होने के बायस अवाम में डर खौफ तारी हो गया। लिहाजा ज़िम्मेदार ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदे खुसूसी दिलचस्पी के तहत ऐसे वाक़यात का दोबारा अयादा न होने के लिए जंगली कुत्तों को हिरासत में लेने की अवाम की जानिब से अपील की गई है। रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की तायद का सिलसिला जारी है। आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में वेमुला प्रशांत रेड्डी को कामयाब बनाने के ताल्लुक़ से वेलपुर देवंगा अराकीन ने मुतफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाई। बालकुंड हल्के असम्बली में रियासती वज़ीर इमारत व शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी की हिमायत का सिलसिला जारी है, जिसके तहत हर रोज़ वेलपुर देवंगा से वाबस्ता अराकीन की जानिब मुतफ़िक़ा तौर पर क़रारदाद की मंजूरी अमल में लाते हुए आइंदा मुनक़िद होने वाले इंतख़ाबात में रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने का इज़हार किया। CM KCR की हुक्मरानी में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में सर फहरिस्त होने का मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता ने किया इज़हार। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद MLC के कविता लंदन का दौरा करने के दौरान नेशनल इंडियन स्टूडेंट्स एंड अलुमनी एसोसिएशन UK NISAU अराकीन से तबादले ख्याल किया और तलबा की जानिब से पूछे गए सवालात के जवाब देते हुए ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात
वो तेलंगाना की तरक्की व इनके सियासी कैरियर के उमूर के ताल्लुक से अपने ख्यालात का इजहार किया। वो रियासत तेलंगाना की तश्कील अमल में लाने के फौरी बाद सर्वे का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसके तहत रियासत के लोगों की समाजी व इक़्तिसादी हालत की तफसीलात हासिल करने का इजहार किया। BRS अपनी नाकामी छुपाने में मसरूफ, कामारेड्डी में साबिक़ा वज़ीर क़ायद कांग्रेस मोहम्मद अली शब्बीर का सहाफ़ती बयान। మొన్న ఎంతో మంచి మాటలు చెప్తే నమ్మినాం, అబ్బో ఎలక్షన్ కమిషన్ బాగానే యాక్షన్ తీసుకుంటుందని. కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ మాటలకేనా లేకుంటే వర్క్ కూడా చేస్తుందా అని ఇది మా ట్రయల్గా చూసి ఎలక్షన్ కమిషన్కు కంప్లైంట్ చేస్తున్నా. ఇవాళ 4 హెలికాప్టర్ ఎందుకు రాబాయి? మీకు ఉన్నదేంత తెలంగాణ? 2 గంటల్లో ఎక్కడైనా పోవచ్చు. నువ్వు కరీంనగర్ కానీ, కామారెడ్డి కానీ, నిజామాబాద్ కానీ, మహబూబ్నగర్ కానీ, నల్గొండ కానీ, ఎక్కడైనా కానీ 2.5 hours 2 hours పోవచ్చు. దాని గురించి 4 హెలికాప్టర్ హైర్ చేసుకున్నారంటే ఎవరు డబ్బు? మీ పార్టీ సొంతం డబ్బులా, మీ కార్యకర్తల డబ్బులా, లేకుంటే తెలంగాణ ఖజానా మా పబ్లిక్ డబ్బులతో పేమెంట్ చేస్తున్నారా? ఎలక్షన్ కమిషన్ తేల్చాలా. అంత అహంకారం పనికిరాదు. ఇది రెండో పాయింట్ నా మీద. కరెంట్ విషయంలో చెప్తున్నాడు. ఇవాళ కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా. ఇది అంతా అద్దెకు తీసుకున్న కరెంట్తో 24 అని చెప్తున్నావు పేరుకే. ఏ ఒక్క సబ్ స్టేషన్ కట్టినాను? థర్మల్ పవర్ యాదాద్రి ఏడవన్నదా? యాదాద్రి ఇదే కౌన్సిల్లో నాకు ఆయనకు వచ్చినప్పుడు షబీర్ సాబ్ నేను 18 monthsలో యాదాద్రి 4000 మెగావాట్ కట్టేస్తా అంటే, నువ్వు కాదు ఇంకా ఎవరు కూడా కట్టలేరు, 4.5 సంవత్సరాల నుంచి 5 సంవత్సరాలు పడుతుంది అంటే చూడు అన్నారు. ఇలా 9.5 సంవత్సరమే అయింది. ఇంకా యాదాద్రి ప్రాజెక్ట్ నల్గొండ దగ్గర ఇప్పుడు వరకు గడ్డి ములుస్తున్నది, కానీ పర్మిషన్స్ ఏం లేదు. భద్రాచలం అన్నాడు, ఆ పాత టెక్నాలజీ 270 అది తీసుకొచ్చి పెట్టారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ 12,000 మెగావాట్ కేవలం 5 yearsలో రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం, షబ్బీర్ అలీ మంత్రిగా 12,000 మెగావాట్ కేవలం థర్మల్ మీద తీసుకొచ్చిన ఘనత మాది. నీకంతా ఇదే. ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి కిరాయి కరెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి, ఎన్టీపీసీ నుంచి, ఇతర ప్రైవేట్ కంపెనీ అన్ని కిరాయి కరెంటేనా? మేమేమన్నాడు ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు, షబ్బీర్ మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడాలా. ఇప్పుడు దొరుకుతుందో కరెంట్ దొరకదో, కానీ మేము మొదలు పెడితే ఇలా కరెంట్ ఉంది కనిపిస్తుంది. ఇలా లచ్చాపేట్ అండ్ ఫరీద్పేట్ సబ్ స్టేషన్లు అన్నారు. నీకు సిగ్గు శరం ఉంటే ఆడ డేట్ చూడు. ఫౌండేషన్ ఎప్పుడు వేసినా, ఎప్పుడు నేను ఇనాగరేషన్ చేసినా. ఈ 2 సబ్ స్టేషన్లు లచ్చాపేట్ నేనే ఫౌండేషన్, నేనే ఇనాగరేషన్ చేసిన. ఫరీద్పేట్ నేనే ఫౌండేషన్, నేనే ఇనాగరేషన్ చేసిన. దాని మీద మాట్లాడుతున్నాడు. రా ఆడ మా పలకలు ఉన్నాయి కదా దాని మీద డేట్స్. ఇంత అవదాలా కేసీఆర్ గారు మధ్యలో నిలబడినప్పుడు నాకు అన్నాడు, షబీర్ భాయ్ మీరు ఒకసారి వచ్చి నాకు సిరిసిల్లలో క్యాంపెయిన్ చేయగలదా అన్నాడు. ఇంతతో గెలిచినవా? इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सालूरा मंडल के रहने वाले मरहूम आर्मी जवान गंगा प्रसाद के आखिरी रसूमात में जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व सीपी सत्यनारायण ने की शिरकत। बांसवाड़ा हल्का असेंबली की हर तांडे में जगदम्बा सेवालाल महाराज मंदिर के क़याम के लिए फंड मंजूर। बांसवाड़ा में बंजारा भवन के इफ्तिताही तकरीब से रियासती असेंबली स्पीकर पुछराम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। रंदीपेट मंडल के मुख्तलिफ गाँव में चेक डैम प्रोजेक्ट के जरिए से ही काश्त के लिए पानी की फराहमी की जा रही। आलमूर MLA जीवन रेड्डी इन्होंने मरनपल्ली में चेक डैम के लिए रखा संगे बुनियाद। सीएम केसीआर के दौर में हर तबके के साथ किया जा रहा इंसाफ। जकरानपल्ली मंडल के मुख्तलिफ तबके के जिम्मेदारों में संगम के लिए मंजूर फंड्स के चेक्स की रूरल रुकन असेंबली बाजेडी गोवर्धन ने की तकसीम। अमान वेलफेयर सोसाइटी का साबिका डिप्टी मेयर व BRS क़ायद मीर मजाज अली कॉर्पोरेटर हारून खान के हाथों इफ्तिताह। नौजवानों की खिदमात की सताइश। इंदौर
कैंसर हॉस्पिटल व कैंसर फाउंडेशन के इश्तराक से शौर बेदारी रैली का इनेकाद एसीपी किरण कुमार व जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।